آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے معروف قانون دان رانا عمر فاروق ایڈوکیٹ کا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑنے کا اعلان۔ رانا عمر فاروق ایڈوکیٹ الیکشن 2026 میں بطور امیدوار سیکرٹری حصہ لیں گے۔ سینئر وکلا کی بڑی تعداد نے سیکرٹری کی سیٹ پر رانا عمر فاروق کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے معروف اور نوجوان ایڈوکیٹ قانون دان رانا عمر فاروق کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے الیکشن 2026-27 میں سیکرٹری کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور فیصل آباد کے جو بار ہے اس کے معزز ممبران کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ بزرگ وکلا کی بڑی تعداد اور خاص طور پر نوجوان وکلا کی کثیر تعداد نے رانا عمر فاروق کی بطور سیکرٹری الیکشن پر حمایت کا مکمل اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید گفتگو ہم کریں گے رانا عمر فاروق ایڈوکیٹ سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا، الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، آج اناؤنسمنٹ بھی آپ نے کر دی ہے، کیا ذہن میں خاکہ ہے کہ بار کی بہتری کے لیے اور وکلا کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ جی دیکھیں، ہماری کچہری کے اندر جو ینگسٹرز وکلا آ رہے ہیں جن کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے، ان کو چیمبرز کے کافی ایشوز ہیں، ان کو ہم حل کریں گے۔ دوسرا، ہمارے جو سب سے بڑی دیر سے مسئلہ چل رہا ہے پارکنگ کا، اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکے وہ کریں گے۔ جو ہمارے سینئرز وکلا ہیں ان کے لیے جو چیزیں آج سے پہلے نہیں کی گئی، ان کے لیے کوئی بہتر سے بہتر حکمت عملی بنائی جائے گی، اور جو ہماری ڈسپینسری ہے کچہری کے اندر اس کو بھی کوشش کر کے اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ کسی کو بھی باقی ہاسپٹل کی جیسی سہولت ملے، اور یہاں پہ ہر وقت جو ڈاکٹر پہلے بھی موجود ہیں اس کو مزید اچھے طریقے سے تمام سہولیات دی جائیں۔ رانا عمر فاروق کی جانب سے ابتدائی طور پر اپنا مینوفیسٹو، اپنا منشور بتایا گیا کہ خاص طور پر بزرگ وکلا کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، نوجوان وکلا کو چیمبرز فراہم کیے جائیں گے، ضلع کچہری میں پارکنگ کے شدید مسائل ہیں ان کو بھی فرسٹ پریورٹی میں حل کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ رانا عمر فاروق ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ بار کی جو ڈسپینسری موجود ہے اس کو اپ گریڈ کرنا بھی اولین ترجیحات میں شامل ہے، تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال پہنچنے سے پہلے بہترین طبی امداد ڈسٹرکٹ بار کی ڈسپینسری سے مل سکے اور وکلا کی جان محفوظ رہ سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رانا عمر فاروق کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ہر وکیل جو کسی قسم کے بھی مسئلے کا شکار ہوگا، کسی کو کوئی سرکاری لیول پر مسئلہ ہوگا، کسی کا کوئی پرسنل لیول پر مسئلہ ہوگا، تو بطور سیکرٹری وہ ہمہ وقت ان کے لیے حاضر ہوں گے۔ 24/7 بطور سیکرٹری رانا عمر فاروق کی خدمات وکلا کے لیے دستیاب ہوں گی۔ جی طیب مقبول ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں دلم پیلس مارکی انتظامیہ کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مظہر اقبال کہلو نے بطور خصوصی شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ افطار ڈنر میں رضوان کہلو اور حماد کہلو نے بھی شرکت کی۔ افطار ڈنر میں وسیم اکرم، فیصل ورک، ملک ارشد، ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل برانچ محمد ہارون، چودھری عمران کہلو اور چودھری مصور بھی شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد تھانہ ساندل بار کے علاقے میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا معاملہ، ایس ایچ او ساندل بار نے واقعے میں ملوث دوسرا ملزم بھی گرفتار کر لیا۔ ملزم فیصل کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ ملزم فیصل پہلے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو فیصل آباد سے، جہاں تھانہ ساندل بار کے علاقے میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا معاملہ ہے۔ ایس ایچ او ساندل بار نے واقعے میں ملوث دوسرا ملزم بھی گرفتار کر لیا۔ ملزم فیصل کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ ملزم فیصل پہلے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، فیصل آباد تھانہ ساندل بار کے علاقے میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا معاملہ پیش آیا ہے۔ ایس ایچ او ساندل بار نے واقعے میں ملوث دوسرا ملزم بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم فیصل کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملزم فیصل پہلے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ قتل کے کیس کا فیصلہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی معروف کاروباری شخصیت ضیاء زرکر کے بیٹے حامد ضیاء کے قتل کا فیصلہ۔ 7 ملزمان بری اسامہ انصر کو 25 سال قید اور 50 لاکھ جرمانہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج عبدالحفیظ بھٹا نے سنایا۔ مقتول کے کیس کی پیروی معروف قانون دان شاہد ہراج ایڈوکیٹ اور مختوم مجید ایڈوکیٹ نے کی۔ اپڈیٹ کریں کہ قتل کے کیس کا فیصلہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی معروف کاروباری شخصیت ضیاء الحق زرگر کے بیٹے
हामिद ज़िया के कत्ल का फैसला, 7 मुल्जिमान बरी, उसामा अंसर को 25 साल कैद और 50 लाख जुर्माना। फैसला एडिशनल सेशन जज अब्दुल हफीज भुट्टा ने सुनाया। कमालिया थाना सिटी में मौजूद शहरी पर तशद्दुद करने पर साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुश्ताक रमज़े बरहम आईजी पंजाब ने फौरी नोटिस लेते हुए एसएचओ सिटी समेत 2 एहलकारों को ताहुक्मसानी मुअत्तल कर दिया। थाना सिटी में शफकत नामी शहरी पर एहलकारों की जानिब से बेजा तशद्दुद किया गया था। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफा रमज़े का कहना था कि किसी को शहरियों की इज्जत नफ्स मजरूह करने की इजाजत नहीं देंगे। अपडेट कर रहे हैं कमालिया से, जहां थाना सिटी में मौजूद शहरी पर तशद्दुद करने पर साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफा रमज़े बरहम आईजी पंजाब ने फौरी नोटिस लेते हुए एसएचओ सिटी समेत 2 एहलकारों को ताहुक्मसानी मुअत्तल कर दिया। थाना सिटी में शफकत नामी शहरी पर एहलकारों की जानिब से बेजा तशद्दुद किया गया था। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफा रमज़े का कहना था कि किसी को शहरियों की इज्जत नफ्स मजरूह करने की इजाजत नहीं देंगे। आपको बताएं कि शोरकोट के जंगलात में आग लगने का सिलसिला ना थम सका। जंगलात में दूसरे रोज भी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग लगने से कीमती लकड़ी जलने का खदशा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जंगल में नामालूम वजह से आग लगी। रेस्क्यू कंट्रोल ने नजदीकी एम्बुलेंस और फायर व्हीकल्स को मूव करवा दिया। रेस्क्यू शोरकोट और अहमदपुर सियाल की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा एहसान मुश्ताक इंसाफ यूथ विंग का मरकजी सदर नामजद चीफ ऑर्गेनाइजर इंसाफ यूथ विंग खालिद खुर्शीद ने पहली तंजीम को तहलील कर दिया। एहसान मुश्ताक का ताल्लुक फैसलाबाद से है। अपडेट करें कि पीटीआई रहनुमा एहसान मुश्ताक इंसाफ यूथ विंग का मरकजी सदर नामजद चीफ ऑर्गेनाइजर इंसाफ यूथ विंग खालिद खुर्शीद ने पहली तंजीम को तहलील कर दिया। एहसान मुश्ताक का ताल्लुक फैसलाबाद से है। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईद के मौका पर स्टेशन पर रश बढ़ गया। तमाम ट्रेनों की बुकिंग फुल। मिल्लत पराक्रम पाकिस्तान और रहमान बाबा एक्सप्रेस में बुकिंग फुल। कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों की 7 अप्रैल तक बुकिंग फुल हो गई। रश के पेश नजर महकमा रेलवे ने तमाम अमले को मुतहरिक कर दिया। रेलवे हुकाम का कहना है तमाम ट्रेनों में बुकिंग फुल जारी है। ईद के मौका पर रिजर्वेशन दफातर में अमला मुतहरिक है। मुसाफिरों को टिकट रिफंड की भी बरवक्त सहूलत दी जा रही है। अपडेट करें कि ईद के मौके पर स्टेशन पर रश बढ़ गया है। तमाम ट्रेन की बुकिंग फुल। मिल्लत पराक्रम पाकिस्तान और रहमान बाबा एक्सप्रेस में बुकिंग फुल। कराची जाने वाली तमाम ट्रेन की 7 अप्रैल तक बुकिंग फुल हो गई। रश के पेश नजर महकमा रेलवे ने तमाम अमले को मुतहरिक कर दिया। तमाम ट्रेन में बुकिंग फुल की जा रही है। ईद के मौके पर रिजर्वेशन दफातर में अमला मुतहरिक। मुसाफिरों को टिकट रिफंड की भी बरवक्त सहूलत दी जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं, खवातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ। शॉपिंग के बाद ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। कोई पेडिक्योर मैनिक्योर तो कोई फेशियल्स और दीगर सर्विसेज करवाने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। मैनिक्योर, पेडिक्योर या उसके साथ साथ हेयर ट्रीटमेंट्स खवातीन की अवलीन तरजीह हो गई है शॉपिंग के बाद, क्योंकि शॉपिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर पार्लर नहीं जाएंगे तो जो शॉपिंग की थकावट है और ईद पे खूबसूरत आने की ख्वाहिश है वो कैसे पूरी होगी जनाब। तो खवातीन ने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ पार्लर्स का रुख किया है। ईद में भी कम दिन रह गए हैं तो तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त कुछ क्लाइंट्स मौजूद हैं जो हेयर डाई ले चुके हैं, उनके बाल भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी ईद पे जो खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश है वो किस हद तक पूरी हो चुकी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ईद पे खवातीन सबसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। कहते हैं ईद यहाँ तो बच्चों की होती है, यहाँ खवातीन की होती है। ये क्या आपको लगता है, ऐसा ही है? मैंने यहाँ से डाई स्टिक करवाया, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। यही तरीका है खूबसूरत नज़र आने का, तो मुझे बहुत पसंद है अपने बाल, तो बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू रुबीना आपकी। बिल्कुल, बाल जो हैं वो बड़े पसंद आए हैं और शुक्रिया भी अदा किया कि खूबसूरत बाल जो हैं मेरे बन गए। इसका मतलब कि मैं ईद पे भी खूबसूरत नजर आऊँगी। इस वक्त रुबीना हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा कि ख़वातीन जो हैं वो ईद पे बड़ी ज़्यादा खुश नज़र आती हैं, उनको तैयार होने का शौक़ होता है, तो पार्लर का रुख करती हैं। जी जी बिल्कुल। अब हमारा अभी से हेयर का काम स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से। डाई के लिए आ रहे हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, फेशियल के लिए भी अभी से ही आना शुरू हो रहे हैं क्लाइंट्स। माशाल्लाह अब रश होना शुरू हो गया है। बिल्कुल, रश जो है वो होना शुरू हो गया क्योंकि ईद की तैयारी है जनाब, और ईद पे खवातीन का खूबसूरत आना लाजमी है। तो खवातीन इस वक्त अपने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो है वो करवाती दिखाई दे रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मरियम आपका। और वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद उल फित्र के लिए नए कपड़े सिलाई हुए या नहीं,
शहरी कपड़े लेने दर्जी की दुकानों पर पहुंच गए। मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी अपडेट कीजिएगा। वक्त कम मुकाबला सख्त है। ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से शहरियों का दर्जियों की दुकान पर काफी रश देखने को मिला है। ऐसे में कुछ हजरात दर्जियों की दुकान पर मौजूद हैं। बताइएगा कि आपके कपड़े सिल गए हैं? जी कपड़े सिल गए, हमने दिए थे सिलाई करने के लिए, हमें कपड़े मिल गए टाइम से। अच्छा, आप बड़े लकी कि आपको कपड़े मिल गए हैं। जी हाँ जी। अच्छा, आप बताइएगा शहरियों की जानब से गिला होता है कि जनाब दर्जी कपड़े नहीं वक्त पर देते, अगर देते हैं तो लेट देते हैं, कुछ के ईद के शुभ मिलते हैं। बड़ा दिलचस्प मैटर है। पता क्या है, ये कपड़े होते हैं नाजुक से, ये बनते मुश्किल से हैं, फिर भी हमारी कोशिश यही होती है टाइम से बना कर दें, और इसलिए हमारे वादे की पाबंदी होती है, हम काम वही पकड़ते जितना बनना है। बहुत शुक्रिया जी। कुछ के कपड़े सिल गए हैं, कुछ के सिलाई होना बाकी है, और दर्जियों की दुकान पर शहरियों का रश काफी देखने को मिला है। जी इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। छोटी ईद की मीठी खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरी अपने प्यारों को मिठाई और केक तोहफा देने के लिए बेकर्स पहुंच गए। प्यारों और दोस्त अहबाब को तोहफा के तौर पर केक और मिठाई की खरीदारी शहरी केक और मिठाई के लिए प्यारों के घरों में ईद से कबल तकसीम करते हैं। मुनफरिद दिलकश गिफ्ट पैक्स बनवाने के लिए शहरियों का बेकरियों पर रश। शहरियों का कहना है ईद का मकसद ही अपनों के साथ खुशियों को बांटना है। केक और मिठाई अपनों के घर देंगे ताकि सब मिलकर ईद मनाएं। ईद पर अपनों के साथ गैर और मुस्तहिक अफराद का भी ख्याल रखा जाए। तो छोटी ईद के मौके पे सिर्फ ये ईद होती है मीठी ईद। मीठी ईद का मतलब है केक लें, स्वीट्स लें, अपने प्यारों को याद रखें, दोस्तों को याद रखें, रिश्तेदारों को याद रखें, और सबसे जरूरी जो लोग ईद की खुशियाँ। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।